ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ آج ہم نے مدنی مذاکرے میں پانی کے استعمال کے بارے میں دیکھا کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کا اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں میاں بیوی کے متعلقہ جو لڑائی جھگڑے گھر میں چل رہے ہیں اس کے بارے میں سمجھا۔ اس طرح بہت زیادہ مسائل ہم نے آج سیکھی ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ کیا ہے۔ سیکھنے کو تو ماشاءاللہ یہاں پہ بہت کچھ ملا ہے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ جیسے کہ گلاس میں ہم پانی پئیں گے تو ایک بوند بھی ضائع نہیں کرنی، وضو کرتے ہوئے بھی زیادہ پانی نہیں ضائع کرنا۔ یہ ابھی ہم نے سیکھا کہ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بس میں کرنے کے لیے تویز نہیں، عملی طریقہ کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہاں پہ ماشاءاللہ بہت یہاں کی بھارے بھی الگ ہیں اور یہاں پہ آؤ تو ذہنی سکون ملتا ہے۔ بھائی دعوت اسلامی آپ کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے نا، انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کا حل کرتی ہے۔ ابھی دیکھیں باپا نے وہ مدنی مذاکر میں فرمایا کہ پانی بچاؤ طریق جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ہر کوئی یہی رونا رو رہا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے بیوی ماحول سے دور ہیں۔ وہ آج جس طرح کا دور چل رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں، اپنے تمام رشتہ داروں کو دعوت اسلامی میں ڈال دو۔ الحمدللہ وہ آپ کی تربیت کریں گے۔ اس وقت پرفتن دور ہے، ہر طرف ایمان کے لٹیرے ہر طرف پھر رہے ہیں، اور اپنے ایمان کو بچانے کے حوالے سے امیر سنت نے جو اتنا پیارا مدنی ماحول دیا ہے، یقین ماننے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ملتا ہے، یقین ماننے آپ یہ کہیں کہ یہاں کیا نہیں ملتا۔ الحمدللہ علم دین حاصل ہوتا ہے، مرشد کی زیارت ہوتی ہے، عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ علم دین کے بارے میں آج جو ہمیں جو پانی کے بارے میں جو سیکھنے کو ملا کہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ صبح میں جب اٹھتا ہوں تو فجر کے بعد 1 گھنٹہ جو ہے نا جی، جو ان کا مدنی مذاکرات، مدنی پھول جو بھی ہوتے ہیں مدنی چینل پہ، وہ میں سنتا تھا تو بڑا دل کرتا تھا کہ ادھر جا کے نا مطلب یہ لائیو دیکھا جائے۔ دوست میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ یار جب بھی آپ نے آنا نا تو مجھے آپ نے ساتھ ضرور لے کے آنا ہے۔ میں سارے اسلامی بھائیوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ الحمدللہ مدنی مذاکرات دیکھا کریں، کیونکہ اس میں کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ مطلب سنت کے مطابق کس طرح پانی پینا چاہیے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، کھانا کس طرح بیٹھ کے کھانا چاہیے، اور جو گھر میں جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، ان کو کس طرح سیٹ کرنا ہے، تو اس طرح کے بھی الحمدللہ سوال ہوتے ہیں۔ اور آج جو مدنی مذاکرے میں جو سوال ہوا کہ کئی بچے جو اسکول پڑھتے ہیں، اگر ایک بچہ مطلب دوسرے بچوں کی مطلب کوئی بیگ چوری کر لیں یا کوئی شارپنر کوئی پنسل چوری کر لیں تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو امیر اہل سنت نے یہی جواب دیا کہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں اور بچوں کو اس حوالے سے ڈرا دیا جائے۔ گھڑوں کو جو ملو پر گھڑوں خاص سائیں جو فرماयो پانی کے بارے میں، پانی کے گھڑوں ضیاع نہ کयो، وہ بدھو سے سائیں ماشاءاللہ گھणो कुछ सम्झायो، घणियूं कुछ नेमतूं ॿुधाईं जंहिंजी असांखे ख़बर न हुई इस्लाम दीन जे हिसाब सां। ऐं हिते जेको कोर्स कयूं था असां उन में भी माशाअल्लाह घणी तरबियत ॾियनि था असांखे उस्ताद जन। मदनी मुज़ाकरे में कुछ मसाइल ऐसे हैं जो बंदे को नए सीखने को मिलते हैं। जैसे आज मदनी मुज़ाकरे में बात हुई है पानी के इसराफ के हवाले से कि नदी के किनारे बैठ के वुजू कर रहे हैं आप, तो वहाँ भी पानी जो है ना वो इस तरह इस्तेमाल करें कि उसमें इसराफ ना हो। कदर करनी चाहिए नेमतों की, मतलब पानी की कदर करनी चाहिए हमें। पानी के इसराफ के बारे में कहा गया कि पानी को कम इस्तेमाल करें। अगर आप नाक में पानी डालना चाहते हैं तो थोड़ा आधा चुल्लू नाक में डाल लें, ये ज्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि पानी का इसराफ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, एहतिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नियत की, आप मोतकिफ हो गए। दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से भी
दोहरा लेना ज़्यादा अच्छा है। चाहे अपनी मादरी ज़बानी में कह लीजिए कि मैंने सुन्नत या इत्तिकाफ की नियत की। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आबे जमजम शरीफ पीना, दम किया हुआ पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नियत की हो। एहतिकाफ की नियत नहीं की थी तो अब कर लीजिए, और इफ्तार वगैरह जो करना है कर लीजिए। ताहम मुनासिब तरीका ये है कि एहतिकाफ की नियत पहले से कर ली जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए ये नियत हो, और कुछ ज़िक्र और दुरूद कर लें, चाहे 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर भले इफ्तार वगैरह करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1444 हिजरी के ज़िक़ाद शरीफ की आज 14वीं शब, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप पर सलाम पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये जरूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज करने की कोशिश करूंगा, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाये करता, अपने कहे पर बेसबब अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता, यानी अपने बोल को वापस लेता, अपनी भूल कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद करीम की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है, किसी ने अपने शौहर को ये कहा कि घर में काम करने वाली होती हैं तो आप उनके सामने बार बार आया जाया ना करें, अच्छा नहीं लगता। उनके शौहर कहते हैं कि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। क्या ऐसे कहने से शौहर पर इल्ज़ाम लगाना हुआ? इस सबब से झगड़ा बहुत बढ़ गया है। बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। वस्सुल्हु खैर, कुरान करीम में कि सुलह में खैर है। अब अगर शोहर ने बिलफर्ज कोई इस तरह किया तो अब यह कि इसमें बीवी को चाहिए कि वो हुस्न ज़न कायम करे, क्योंकि अब वो औरत के पास से गुजरना, वहाँ आना जाना, ये अब ऐसा नाजुक दौर है। अब अगर शोहर दुकानदार है तो औरतें गाहक बनकर आती हैं, क्या करेगा शोहर? आमना सामना तो है, ये लाजिम है कि शोहर अपनी निगाहों की हिफाजत करे, लेकिन ये कि ये हम किसी पर ब्लेम तो नहीं कर सकते ना कि निगाहों की हिफाजत नहीं कर रहा या इसकी बुरी नीयत है माअज़ल्लाह। तो यूं मतलब ये नहीं कि अब सफ़र में, हवाई जहाज में, ट्रेन में, बसों में भी औरतें मिक्स सफ़र कर रही हैं, ऐसी सूरत हाल है। बाजार में जाओ, मस्जिद में नमाज के लिए जाओ तो रास्ते में औरतों का आमना सामना, अगर मस्जिद बाजार में खासकर, तो सीढ़ियों पे चढ़े तो पड़ोस की औरतें, लिफ्ट में बैठे हैं तो अंदर औरतें बाजो बात होती हैं। तो खैर तन्हाई उनके साथ ना की जाए, एहतियात की जाए। ताहम यह कि घर में अगर काम वाली है, हिमासी है, तो इससे मर्द जो है ना, ये आमतौर पर यानी कि आमना सामना होता होगा, बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। अब वो किसी ने समझाया, घर की औरत नहीं समझाया, अब किस अंदाज में समझाया, क्या तरीक़ेकार उसका था, अब ये तो ज़ाहिर है अल्लाह बेहतर जाने। ताहम ये कि अगर अब समझा ही दिया तो शोहर को बड़ा दिल रखे, यही कहा जाएगा कि बड़ा दिल रखे, और अपनी सफाई करना चाहे तो बेशक करे कि मेरी ये नीयत नहीं होती, बल्कि अब मैं घर है तो आना जाना तो होगा। ताम ये नहीं कि नरमी करेंगे तो घर चलता रहेगा। अब इसमें गुस्सा करेंगे, हड़ाउड़ी करेंगे तो शैतान तो चाहता ही यही है कि दोनों को लड़वाए और दोनों को जुदाई डाल दे।
وہ शैतान का तख्त जो है वो बिछा हुआ था और कारगुजारी इसके चेले पेश कर रहे थे। किसी ने कुछ कहा कि हमने ये करवा दिया, हमने लड़वा दिया, तो कत्ल करवा दिया, फुला करवा दिया, और किसी ने कहा कि मैंने मियाँ बीवी में जुदाई करवा दी। तो शैतान ने उठकर उसको मतलब गले लगाया और उसको मतलब काफी है उसकी शाबाश दी कि तूने मतलब मियाँ बीवी को टकरा दिया, लड़वा दिया। इस तरह की रिवायत पढ़ना याद पड़ता है मुझे। अब हो सकता है अल्फाज आगे पीछे हो गए हों। तो यूं मतलब शैतान चाहता है कि हमारे घर खराब हो, आपस में लड़ाइयाँ, क्योंकि मियाँ बीवी में लड़ाई होगी तो खाली मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होगी, बच्चे अगर हैं तो बच्चे तो बेचारे तबाह हुए, अब वो किस तरफ जाए। ज्यादातर माँ के पास जाते हैं तो बाप रुलता रहता है, अगरचे इसके भी शरई अहकाम है कि कब तक माँ के पास, कब तक बाप के पास, किस सूरत में माँ के साथ वगैरह वगैरह, ये अपने अहकामात हैं इसके। लेकिन ये कि मसाइल, अच्छा फिर ये कि ससुराल और मेका इनमें आपस में ठनेगी, फिर बदनामी, फिर गुनाहों के दरवाजे, तो गीबतें, तोहमतें, और मतलब वो शैतान की ये ना समझो कि वो चांदी हो जाती है। इतना खुश होता है कि ये मतलब बाज़ औक़ात इसमें लाशें गिरवा देता है। तो इसलिए मतलब पहले तो कहने से पहले ये सोचे कि मुझ पर ये कहना वाजिब है। अब अगर कहना वाजिब नहीं है, अगर वाकई अगला गलती कर रहा है, अव्वल तो गलती का सबूत नहीं है ये, अगर गलती वाकई कर भी रहा है अगला, तो इसमें ये गौर करे कि इसको मैं रोकूंगा तो ये गलती से बाज आएगा, तब तो मतलब कहना वाजिब हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ना कहे। तो इसलिए अब वो जो होना था हो गया। अगर कोई सा वाकया कहीं हो जाए तो दिल बड़ा रखना चाहिए। जिसने कह दिया उसको चाहिए कि वो माफी मांग ले कि भाई मुझे इस तरह कहना नहीं चाहिए था, मुझे एहतियात करनी चाहिए थी, और इनको चाहिए कि माफ कर दे। तो इस तरह मतलब जिसका भी कसूर हो, अब ज़ाहिर है कि एक सवाल जवाब हो रहा है, तो जिसका भी कसूर हो, ये यानी कि अब इसमें सबूत लाओ और कस्में खाओ और कुरान उठाओ, और ये सारे मसाइल जो है ना ये शैतान के लिए बड़े मतलब मजे के होते हैं। ऐसे अंदाज नहीं, फिर अड़ोस में पड़ोस में खानदान में ये बातें आम होती हैं, कोई इसको बुरा भला कहता है, कोई उसको बुरा भला कहता है, और खानदान सबूत ताज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और जज्बात में आकर फिर आदमी कोई इंतहाई कदम भी उठा लेता है। तो इसलिए मतलब माफी करनी चाहिए कि जो माफी मांगता है उसका दर्जा बुलंद होता है, कम नहीं होता। मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। तो आजिज़ी करनी चाहिए, तवाज़ो करनी चाहिए, और जो माफी मांगता है तो माफ कर भी देना चाहिए, और मैंने कहा दिल बड़ा रखना चाहिए। घर में ये किड़किड़ टेंशन में फिर अलग बीमारियां, कभी बाज़ औक़ात दिल का दौरा भी पड़ जाता है टेंशन में, आदमी हस्त से नेस्त हो जाता है से नहीं हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। टेंशन ऐसा मतलब है कि खौफनाक मतलब मरज है। तो इसलिए वो रख मौलाते आस है फलाह कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंसान इस दुनिया में तन्हा आता है और तन्हा ही इस दुनिया से वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ पर रहता तन्हा नहीं है। हमारा जिस से ताल्लुक़ होता है, हम उससे कभी खुश होते हैं और कभी नाराज़ होते हैं। और जब कोई अपना हमसे नाराज़ हो जाए, जैसे बेटा या बेटी, भाई या बहन, माँ या बाप या फिर अहलिया, तो हम कहते हैं कि वो हमसे रूठ गया है। प्यारे अमीर सुन्नत, ये रहनुमाई दीजिए कि जब हमसे कोई रूठ जाए तो उसको मनाया कैसे जाए। रूठने के असबाब पर गौर किया जाए कि अगला रूठा है तो क्यों रूठा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई ऐसी रफ गुफ्तगू कर ली है या इसके साथ कोई ऐसा
नारवा सलूक किया है, कोई सा रवैया किया है जिसकी वजह से ये रूठा है, तो वो सबब दूर करके अगर अपनी गलती है तो माफी मांग ले, तो वो रूठ की जगह बंद हो जाएगा, रूठ खत्म हो जाएगी। और अगर अपनी गलती है और फिर भी उस पर साबित रहकर या उस गलती को तस्लीम ना करके या इसकी इधर उधर की तावीलें बयान करके आप रूठे को मनाने जाएंगे तो शायद वो मजीद पर रूठ जाए। तो वो गुजराती कहावत है, नमियों ते अल्लाह ने गमियों, यानी जो झुकता है वो अल्लाह को पसंद आता है। हदीस पाक में मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह पाक उसको बुलंदी अता फरमाता है। तो इसलिए मतलब है कि यूं रूठ बन का जो मसला ना ये हल हो सकता है, और उसको जो चीज नापसंद है उससे आइंदा एहतियात करे ताकि रूठने की सूरत ही ना बने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने बड़ी उम्दा बात इरशाद फरमाई कि गलती मान ले, और देखा जाए तो ये हुजूर झगड़े के ख़त्म करने के ये दो मेन पिलर भी कह सकते हैं कि गलती हो तो मान ले और गलत फहमी हो तो दूर कर दे। क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ गलती चलो नहीं है मगर अगले को गलत फहमी है, तो गलत फहमी में बेचारा वो नाराज़ होकर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसको ठंडे दिल से क्या उसकी गलत फहमी दूर करने पर भी कोई हमें तवज्जो देनी चाहिए। या ये अब नहीं मानता तो मैं क्या करूं, मेरी भूल ही नहीं है, माफ़ी मांगी थी नहीं माना, तब क्या कर सकते हैं। लेकिन बाद वक़्त बंदा वहाँ पर कुछ गलत फहमी का शिकार होता है जिसको क्लियर करते हैं। तो जैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि अपने सीनों को दूसरों के और दूसरों के सीने को अपने कीने से पाक रखने की कोशिश करो। क्या फरमाते हैं? वजह है गलत फहमी है तो बिल्कुल दूर करनी चाहिए। गलत फहमी है उसको तो अब ये कैसे कह दे कि मेरी गलती है, ये तो ज़रा बात दुरुस्त नहीं है। अब मसला ये कि ये जो मसाइल खड़े होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर वो अंदाज को दखल, अल्फाज को दखल भी होता है कि ना अल्फाज बोलने का भान होता है ना अंदाज कैसा हो इसका शऊर, तो यूं मतलब मसले खड़े हो जाते हैं। गलत फहमी भी अगर उसको बतानी है कि मेरी गलत फहमी है तो इसको भी समझाना थोड़ी आमतौर पे आता है। वो क्या का क्या बोलकर उसको बोलेगा मतलब तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, तुमको गलत फहमी हो गई है, जरा सोच समझ कर बात किया करो, ऐसे ही तुमने फायर कर दिया मेरे ऊपर, क्या मेरी गलती है। अब इस तरह के अंदाज से जाहिर है कि और रूठने में मजीद इजाफा ही होगा। तो अब ये तो बस अल्लाह पाक हुस्न अखलाक की नेमत से हमको माला माल फरमाए। ये घर घर की कहानी है कि बोलना नहीं आता, लेजा कैसा हो ये नहीं आता, आवाज कब बुलंद हो कब पस्त हो धीमी हो इसका हमें शऊर नहीं है। तो इसलिए भी मतलब केस जो है ना वो खराब हो जाता है और बाज़ औक़ात जुदाइयां हो जाती है। फिर गुस्सा ये भी अपना काम दिखा रहा होता है। हुज़ूर मासी और सामने आने जाने के ताल्लुक से जो आपने माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज से मियाँ बीवी और घर के माहौल की आपने तफ़हीम फरमाई। अल्लाह करे कि इतना हिम्मत हौसला और बातचीत करने का ऐसा खूबसूरत तरीका आ जाए। क्या ये मुमकिन है कि मैं मर्दों के लिए कह रहा हूँ कि अगर वो जैसे कि कमरे से बाहर आ रहा है या कोई घर में दाखिल हो रहा है, पता है कि जनाब ये बदमाशी का होता है, अंदाज़ा हो जाता है, तो वो जैसे खंकार कर आए तो वो एक जैसे कि वो मासी को भी सिग्नल हो जाएगा कि एक अजनबी मर्द है तो थोड़ी मासी साइड में हो जाएगी, घर वाले कह देंगे कि वो निकल रहे तो आप थोड़ा साइड में हो जाइए। तो अगर कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग अगर मर्द, तो इससे इंशाल्लाह मर्द का भी इमेज अच्छा ही होगा कि हमारे घर के जो मर्द हैं वो औरतों के मामले में एहतियात से काम लेते हैं। इस ताल्लुक से आप क्या फरमा दें, कोई ऐसे कुछ मंत्री फूल मिल सकते हैं?
मासी की भी ब्रीफिंग कर दी जाए ना, तफहीम की जाए, समझाया जाए कि जब भी मर्द निकलेगा खांसेगा या उसकी आहट सुनकर तुमको सामने आना नहीं है, तुमको इससे बात करनी नहीं है, औरत से ही बात। फिर मर्द को भी चाहिए कि वो भी मतलब बाजी बहन जरा हट जाइए, बहन जरा वो, हाँ मैं जरा अंदर चला जाता हूँ, जरा पानी का जग रख दीजिए। अब ये नरमी में बाजों का फिर वो मासी दूसरी शादी का सबब बन सकती है। हाँ, ये खतरा तो है। एक शख्स को मैं जानता हूँ, आप भी उसको जानते हैं, है खाता पीता आदमी, समझे, और बहुत खाता पीता आदमी है। मासी से शादी की ना उसने, शायद आपको पता हो। तो ये भी होता है। तो असल तो मासी है ना, हमारे घर का माहौल मैं आपको बताऊं, मासी को तनख्वाह देनी पड़ती है। मैं अगर कसम खा लूं ना तो भी शायद मेरी कसम पूरी हो, सही है, समझे, कि हमारे घर का माहौल इस तरह का रहा है शुरू से कि अगर मासी बोले तो मैं तनख्वाह दूंगी और आपके घर में काम करूंगी, करने की इजाजत दे दो। हमारे घर में मतलब उसकी तनख्वाह भी ना ले, उसको काम ना करने दे। हमसे मोहब्बत करने वालों के तो आपको पता अंदाज, अरे वाकई ऑफर भी कि हम आपके घर का यूं काम कर दें, यूं काम कर दें। किसी को हमारे घर में मासियों से मतलब तरकीब हमारे घर में कभी जिंदगी में आंख में बुढ़ा हो गया, कभी देखी नहीं है, बनी ही नहीं है कि ये ना चले अपने को। तो ये ना चले, इंटरनेशनल है हमारा टीवी, बातें भी बाहर चली जाए, पता नहीं क्या क्या बाजुकात हो जाता है। हर मासी बुरी नहीं होती, लेकिन ये कि मैं जनरल बात करता हूँ, दुनिया देखी वाली है। बिल्कुल, बहुत डाकुओं की रहनुमाई, ये बात होगा तो आपको मासी का कैरेक्टर सामने आ सकता है। तो बहुत पत्ते की बात आप इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक रहमत करे, जो भी मासी हो अल्लाह करे शरीयत के मुताबिक वो मासी बने, और जो रखे वो भी 112 मरतबा सोच ले कि इसमें माइनस प्लस दोनों है। अब प्लस गालिब है या माइनस गालिब है, ये देख लें। असल मतलब नुकसान बहुत है इसके। अब आप देखो, मासी और सेठानी, अब जो जिसने मासी को रखा वो सेठानी। अच्छा, अब सेठानी जो है इसको गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा बात सूरतों में, क्योंकि वो मासी को घटिया समझेगी। इसके जहन में आएगा कि ये मेरे माते थे, ये घटिया कौम की औरत है। तो ये खुदा ना खाते इसको अपने से घटिया समझती है, खुद को उससे बेहतर समझती है, तो तकब्बुर की तारीफ में आएगी और जहन्नम की हकदार बनेगी। अच्छा, मजीद ये कि फिजिकली भी नुकसानदेह, कि अपने हाथ से जो कामकाज करे ना, झाड़ू पोछे झाड़ झुटक, उसको ना दिल की बीमारियां होंगी, ना उसको फालेज होगा, ना उसको मतलब है कि सेहत पेट मैदा सब मतलब मीठा मदीना दुरुस्त रहेगा। और जो मतलब खाली बैठे बैठे यूं मासी को ऑर्डर चलेगी ना, ये उठा दे, देख इधर कचरा पड़ा है, इतनी देर हो गई, ये कचरा क्यों पड़ा है, ये सलीके से जरा कपड़े तय करके रख दे। अब ये बेचारी इस तरह सेठानी ऑर्डर करती रहेगी। एक तो उसके अखलाकियात सेठानी के बनने से रहे, समझे, कभी शोहर के सामने भी यही लैंग्वेज हो जाएगी तो फिर जो होना होगा। तो यूं मिस ट्रेनिंग भी इसकी होती रहेगी, और दूसरा इसकी फिजिकली इसको बीमारियां। आप देखो, मासी की सेहत अच्छी रहेगी तो मेहनत करती है, और सेठानी आए दिन दवा की बोतल उसके हाथ में होगी, और डॉक्टरों के टाइम सेट हो रहे होंगे। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन आमीन आमीन। मासियों को दिल बड़ा रखना चाहिए। आपके धंधे पर हाथ नहीं मार रहा, रोजी रोजगार, ये जो घर मैंने जो आँख खोली है ना, वो गुर्बत कदे में आँख खोली है, गरीब घराने में आँख खोली है। हम चने छीलते थे, 4 आने शेर पर मजदूरी मिलती थी। ये व्हाइट चने आप जो खाते हैं ना छिले हुए, ये हम लोग छीलते थे एक दौर में। मैं तो छोटा था, मेरी माँ और ये हम बहनें सभी छीलती थी,
तो मैं भी ज़ाहिर घर में होता था, तो हम लेकर आते थे, फिर इसमें भी बोरी आधी बोरी लाते थे, तो ये मजदूर को भी कुछ 4-8 आने मजदूरी भी लगती थी, घर तक पहुंचाने लाने ले जाने, ये भी होता था खर्चा। और फिर ये क्या, अच्छा फली छीनते थे, बीज आप जो मजे थे भुनी हुई फली खाते ना सर्दियों में, ये बीज ये 1 आना मिलता था 1 शेर पर, शेर समझो किलो, समझे, तो 1 आना मजदूरी मिलती थी। इतनी बड़ी थैली हम लाते थे उठा के, तो 10 आने मिलते थे, 10 शेर की थैली छील कर बीज इनको दे दें तो दुकान वाले को। ये घरेलू कस्ब हम करते थे, गरीब थे, मासी न रखी कभी न कभी मासी बने हम लोग न औरतें, मतलब हमारे घर में कभी तस्वुर भी नहीं था कि इस तरह का घर का कामकाज कोई हमारे खानदान में करे। ये अपने कैफियत बताई, यानी ये मैंने अपनी माँ बाप की या अपनी माँ बहनों की बात कर रहा हूँ। अब जो शाखें हैं सब मासियों वाले हैं, माजरत के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे घर में मैंने मासी नहीं देखी अपने घर में। अब मतलब यह कि लेजीपन आम तौर पे बढ़ता गया है और तकरीबन हर घर की कहानी हो गया है, हर जगह मासी मासी मासी। तो अब वरना ये मासियाँ खुद अगर वाकई गरीब है तो वो कस्ब करेंगी। अब हम तो यूं करते थे ना कि मेरे वालिद फोत हो गए, 1.5-2 साल का था, भाई मेरा कुछ साल बड़ा था, जब और बड़ा हुआ ही है तो इन्होंने वो नौकरी की, तो 75 रुपीज ओनली मंथली उनको तनख्वाह मिलती थी। हम इतने सारे घर के अफराद, तो यूं गुजारे के लिए ये कस्ब करना पड़ता था। ये चने छीलना, फिर वो लाते थे इमली, सूखी हुई इमली, बोरियों की बोरियां सूखी हुई होती है, जो इमली सालन में मजे से खट्टी खट्टे शोरबे वाली खाते हैं ना, वो इमली सूखी हुई, आपको पता भी शायद ना हो, तो वो सूखी पूरी पूरी बोरियां हम ले आते थे इन लोगों के पास, और फिर इसमें से बीज निकालते थे। बड़ा आजमाइश वाला काम होता था, इसके उड़ना और गर्द उसकी, और बड़ा मतलब खैर, तो ये इसकी मजदूरी मिलती थी हमको। तो इस तरह के हम कस्ब करते थे घर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में ये सब मेहनत मजदूरियां, मैंने खुद भी अपने तौर पर मेहनत मजदूरियां करके, मतलब मैंने सेठ की जिंदगी नहीं पाई। अल्हम्दुलिल्लाह सेठ की जिंदगी पाई होती है ना मैंने, तो शायद इस उम्र में हो सकता है कि मैं आपके सामने बैठकर इस तरह बात ना कर पाता। मेहनत में अजमत है, सलाम है, अपने हाथ से काम करें। इन्हें मतलब जैसे स्विच ऑन ऑफ करने के लिए पहले उठना पड़ता था, रिमोट कंट्रोलर से यूं हम कर लेते हैं, तो ये थोड़ी बहुत मूवमेंट भी थी, वो भी कम हुई। और ऑर्डर पानी पिला दो, ये उठा दो, ये रख दो, तो आदमी अपने हाथ से काम करे। वैसे भी अपने हाथ से काम काज करना सुन्नत भी तो है ना, प्यारे आका सुन्नत। प्यारे आका खुद अपने घर का सौदा सलफ लाते थे, सौदा सुलफ, सब्जी वगैरह जो भी अनाज, अब जो भी हो रहा आपको पता, अब या तो लाती भी है तो घर की औरत लाती है, मर्द इस पे लगा रहता है, यूं कह लीजिए। औरत बेचारी बाजारों में जा रही है, कौन कौन इसको देख रहा है, घूर रहा है, कोई परवाह नहीं है। मर्द अपनी मर्दानगी में लगा हुआ है घर में, 4 दीवारी में। छुट्टी के दिन भी इसको तौफीक नहीं है कि घर का अनाज ला कर दे दे, कोई 8 दिन का जखीरा कर ले, एक छुट्टी आई है तो करने वाले करते भी होंगे, मैं जनरल बात करता हूँ। औरतें बाजारों में, आप शॉपिंग सेंटर, बाजार, शॉपिंग मॉल, सब ये औरतों से भरे हुए हैं, मर्द आपको कम मिलेंगे इसमें। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए, करम फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए हम सबको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पहले तो ये अर्ज कर दो कि वो मासी का लफ्ज़ जो है ना, वो कुछ थोड़ा सा वो कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था कि जैसे मासी खाला को भी कहते हैं, हमारे यहाँ भी मासी खाला को कहते हैं। पंजाब से का भी मैसेज आया है कि पंजाब में भी जो मासी होती है ना, वो खाला को मासी कहते हैं। तो इसका एक इंग्लिश में होता है वर्ड मेड, MAID, मेड कहते हैं। ये घर की जो कामकाज वाली होती हैं, नौकरानी कह लें आप, जनरली तो नौकरानियाँ भी कहा जाता है। मुलाजिमा घर की होती हैं, घर के कामकाज करने वालियाँ जो होती हैं, ये उनकी डिस्कशन हम इस वक्त आपस में कर रहे थे। मगर हुजूर ये आपने जो माशाल्लाह जो एहतियात और जो कुछ आपने माशाल्लाह अपने मामलात बयान फरमाए, सदकर और मरहबा। लेकिन इस वक्त अगर मैं अगर बात करूँ मुल्क, अपने मुल्क समेत
دنیا کے کئی ملکوں کی، تو وہاں پر ایک سے زیادہ ماسیاں کو مطلب 24 آور کا وہاں پر رجحان ہے یہ میڈ کا. باقی اب تو مطلب میڈ ہاؤس، وہ گھر کے ساتھ ایک میڈ روم بنتا ہے کہ جہاں وہ یہ رکتی ہیں وہیں رہتی ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہر کوئی تو اس طرح مطلب کہ کرے کہ وہ اپنے گھر سے یہ سارا نظام ختم کر دے، تو شاید یہ ہر ایک کے بس میں ہو نہ ہو، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. مگر یہ کہ وہ سامنے نہ آئے، احتیاطیں کرے، کیونکہ میں نے سمجھایا ہے بعض اوقات بعض ممالک میں کہ یار کم از کم آپ تو اللہ پاک کا ایسا خوف اللہ ہمیں نصیب کرے، آپ تو ایسا نہ کرو. یعنی کہ ایک تو وہ احتیاط جس کو آپ کہتے ہیں، پانی لانا، یہ لانا، وہ لانا، چائے لانا، اسی کو خود بھی وہ اپنی مطلب بچوں کی امی کو بھی نہیں کہے گا، بیوی کو بھی نہیں کہے گا، اس کا خطاب بھی اس کی مطلب کہ گھر کی میٹ سے ہی ہوگا. اسی سے کپڑے، اسی سے استری، وہی اسی کے روم میں جا کر استری والے کپڑے رکھے گی، وہ اپنے اس کے بیڈ روم میں بھی وہ جائے گی، صفائی ستھرائی بھی وہ کرے گی. یعنی اتنا برا حال ہے دنیا بھر میں، اتنا برا حال ہے. یعنی جب مجھے پتہ چلا ہے تو میں نے اپنے طور پر جو مجھے سمجھانے کا جو مجھے موقع ملا، میں نے کوشش کی ہے کہ یار ان گناہوں سے بچیں، بد نگاہیوں سے بچیں. یعنی بہت زیادہ مطلب کہ یہ ایک رجحان بڑھ گیا ہے. اور اب تو امپورٹ ہوتی ہیں یہ میڈ کام والیاں، بعض ممالک کی مشہور ہوتی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ باقاعدہ مطلب ملکوں میں امپورٹ ہوتی ہیں اور وہ اسی فیلڈ میں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن اب اگر ہے بھی گھر میں تو کم از کم یہ کہ گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی یہ نہ کہے کہ ذرا ان کو چائے دے دیے، چائے دے گا. یعنی کہ گھر کی عورت بھی گھر کی میڈ کو کہے گی کہ جاؤ صاحب کو چائے دے آؤ، جاؤ صاحب کو کپڑے دے آؤ، جاؤ صاحب کو یہ دے آؤ، وہ بھی یہی کرے گی. تو وہ آپ نے کہا نا وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتی ہے، کلاڑی پر پاؤں مارتی ہے، اس کا فیصلہ یہ خود ہی کر لے. تو یہ سارے تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان تمام تر چیزوں میں احتیاطیں کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس طرح کے کام ان سے لینے کے بجائے خود ہی کریں. ماشاءاللہ آئیڈیل صورت تو ڈیفینیٹلی میرے سنت نے ارشاد فرما دی ہے، لیکن اب خود کو گناہوں سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ اللہ، گٹر کے پانی میں ہاتھ ڈالے بندہ اور بولے کہ میرا ہاتھ آلود نہیں ہوگا، گندا نہیں ہوگا، یہ ہے بڑا مشکل. یار ماسی رکھ کے اور نگاہوں کی حفاظت بھی کر پائے ہے دور، بہت دور کی بات ہے. میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہے، بچ نہیں سکتا. آمنا سامنا بھی ہوتا رہے گا، نگاہیں بھی چار ہوتی رہیں گی، کبھی کام کا بھی بولے گا، کبھی وہ کچھ نہ کچھ خطاب کر لے گی، یہ بچ نہیں سکتا آدمی. اب وہ آپ کا اگر مذہبی ذہن ہے بھی تو ماسی کا مذہبی ذہن ہوتا تو یہ ماسی بندی گائے کو. میں تو یہ سوچتا ہوں جو شرائط لکھے پردے کے بارے میں سوال جواب کے تعلق سے کہ عورت کام کر سکتی ہے روزی روزگار کے لیے، شرائط اتنے کڑے ہیں کہ اس پر خدا جانے اس کی کسوٹی کس نے کی ماسی رکھتے وقت. یہ تو میرا خیال ہے شاید روئے زمین پر کوئی تو ہو سکتا ہے ولایت کا تاج اس نے پہنا ہو، باقی تو بہت مشکل ہے. یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، اتنے کڑے شرائط ہیں عورت کو کام کاج پر رکھنے کے لیے. آج کل دور کتنا نازک ہے پتہ ہی کسی کو نہیں ہے. ہوتے ہیں بظاہر پرہیزگار لگیں گے اپنے کو، سمجھے کہ جیسے اس کی نظر سے ولایت مل جائے گی، ماسی سے کی کر کے گھر میں باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو ظاہر تو بن گیا، باطن یہ اندر کا دھلے تو ہوئے. کر اللہ کرم، کر اللہ کرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور خطام المساجد سے تعلق رکھنے والے ملک بھر کے کئی عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور ان کا کل سے سکھانے کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے. کل شام تک یہ انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہیں، عالمی مدنی مرکز میں. ماشاءاللہ مختلف ان کے سلسلے ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں. تو ان کی طرف سے بھی کچھ سوالات وغیرہ مجھے بتایا گیا ہیں. تو ماشاءاللہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں. کچھ ان کے سوالات بھی ہیں تو وہ بھی لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد بنوائے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ خدام المساجد والمدارس. اللہ اکبر اللہ
جو کہ دنیا بھر میں مساجد و مدارس کی خدمات سر انجام دے رہا ہے. مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ. اب تک کم و بیش اس شعبے کے تحت 9,000 سے زیادہ مساجد و مدارس تو پاکستان میں اس پر کام ہو چکا. جو مسجدیں بنائیں رحمت سے حصہ پائیں. اور پاکستان سے باہر کم و بیش 700 سے زیادہ مساجد و مدارس پر کام ہو چکا ہے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. اس شعبے کے تحت الحمدللہ عز و جل 3 دن کا سنتوں پر اجتماع عالمی مدنی مرکز میں جاری ہے. ابھی بھی مدنی مذاکرے میں یہ اسلام بھائی موجود ہے، اور بذریعہ انٹرنیٹ بیرون ملک کے اس شعبے کے ذمہ داران بھی ہمارے ساتھ بعض نشستوں میں حاضر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو مساجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. خدام المساجد والمدارس یہ شعبہ قائم ہے آپ کے کئی علاقوں میں، ممالک میں. ماشاءاللہ اس کے ذمہ داران بھی ہیں، اس کے فون نمبر بھی، ویب سائٹ وغیرہ سب ہماری اویلیبل ہے. دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پہ بھی جا کر آپ اس کے متعلق میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. مساجد بنائیے، ضرور بنائیے. خدام المساجد والمدارس جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اسے خدمت کا موقع دیجیے. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوگی. سوالات. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی انشاءاللہ. کریم کو لمبی زندگی عطا فرما. اللہم آمین. پاپا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. احمد مجتبی سب سے آخر نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخر نبی. بیابان رب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں تو تیری باقی بہاروں کو سلام. شعر کا مطلب ڈال دیئے اور ہمارے لیے دعا کر دیئے. ماشاءاللہ پیاری پیاری پھول جیسی مدنی بچیوں اور پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سب کو ان کے ماں باپ سمیت بے حساب بخشے اور ان سب بچوں کو بچیوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. سب کو ماں باپ سمیت دادا دادی نانا نانی بھائی بہنوں سمیت حج نصیب کرے. میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، بار بار یہ سعادت بخشے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیری بہاروں کو سلام. شاید یہ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. اس کا معنی پوچھا ہے تو اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، یعنی عرب شریف کا صحرا دشت یعنی کہ جنگل جس کو ہم کہتے ہیں، تو جنگل یعنی کہ
चट्टियल मैदान हो, सहरा हो, रेत रेगिस्तान, तो वहाँ मतलब कोई फूल तो उगते नहीं है, कांटे ही कांटे और इस तरह के होते। तो हम ये कि अरब शरीफ का सहरा ये इसका अपना मकाम है। तो यूं मतलब इसमें तखय्युल बांधा है कि ए बियाबान अरब तेरी बहारों को सलाम। न तू तो दूसरे बागात जो है दुनिया के उनमें तो बहार आती है तो खजा भी आती है, फूल खिलते हैं तो फिर पत्ते झड़ते भी है ना, लेकिन सहरा अरब की ये शान है कि इसमें कभी खजा आती नहीं है, सदा बहार है। तो ए बियाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को, तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम, यानी जो तेरे अंदर फूल खिलते हैं उनको भी सलाम, और तेरे अंदर जो कांटे पाए जाते हैं उन पाकीज़ा साफ सुथरे कांटों को भी सलाम। ये एक अकीदत का इजहार है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की अकीदत जो सहरा अरब से, वो तो क्या बात है। फिर उठा वलवला ए याद मुगीलान अरब, फिर खिंचा दामन दिल सूए बियाबान अरब, यानी कि मुगीलान ये कांटेदार दरख्त, कांटेदार जो ट्री होता है उसको बोलते हैं मुगीलान। तो फिर उठा वलवला न, वलवला में शौक, यानी कि मेरा शौक उठा कि मैं अरब शरीफ के इन कांटेदार दरख्तों की जियारत करूं, इनको देखूं। फिर उठा वलवला याद मुगीलान अरब, मेरे दिल में याद पैदा हुई उन कांटेदार दरख्तों की, बल्कि कांटों के दरख्तों की। फिर खिंचा दामन दिल सूए बियाबान अरब, अरब शरीफ के सहरा की तरफ, बियाबान की तरफ। ये ना इसको बियाबान का यूं लफ्जी तर्जमा वीराना भी बनेगा गरीबन, तो अब ये वहां तो वीराना है नहीं ना, वीरान तो हमारे दिल हैं, और ये हमारे दिलों को आबाद करने वाले मकामात हैं अरब शरीफ के। तो यूं मतलब है कि इनकी तरफ मेरा दिल खिंच रहा है। मक्ते में तो आला हज़रत ने कमाल कर दिया अरब शरीफ के सहरा की तारीफ में। हश्त खुल्द आए वहां कस्बे लताफत को रजा, 4 दिन बरसे जहां अब्रे बहारान अरब, यानी कि हश्त खुल्द बने 8 जन्नतें, उस जगह से बरकत लेने के लिए आए कि जहां अरब शरीफ के बादल जो है ना, अरब शरीफ की बहारों के बादल 4 दिन के लिए बरस जाए। जहाँ अरब शरीफ के बादल बरसे उसमें ऐसी कशिश है कि 8 जन्नतें उससे फैज लेने के लिए आए। तो ये अरब शरीफ को फजीलत क्यों हासिल हुई? शहनशाह अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये अरब शरीफ को बरकत हासिल है। तो जितना भी अरब है ये मुकद्दस है, निस्बत है, निस्बत की वजह से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, मेरी पढ़नवासी ने सूरह कुरैश सुनाई। सवाल यह है कि क्या दुरूद पाक किसी कागज में लिखकर कब्र में साथ रख सकते हैं? वहाँ तरीका मुनासिब यही है कि कब्र के चेहरे के सामने मैयत के एक गड़ा खोद लिया जाए, ताक बना दी जाए और उसमें ये कागज रख दिया जाए। अहदनामा भी उसी में रखा जाए, कफन में ना रखा जाए। कफन में लोग रखते हैं तो इसमें कि लाश गलेगी सड़ेगी, तो वो जो मुकद्दस
कागज जो रखे हैं तो वो फिर उसमें आलूद होंगे, इसलिए वो सेफ साइड ही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुश्तबा भाई ये सवाल कर रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुरूद इब्राहिम ये नमाज के अलावा नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? पढ़ सकते हैं दुरूद शरीफ, बल्कि बाहर शरीयत में लिखा है कि अगर कोई कसम खाए कि मैं सबसे अफजल दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, तो वो अगर दुरूद इब्राहिम पढ़ ले तो वो उसकी कसम पूरी हो जाएगी। तो ये सबसे अफजल दुरूद शरीफ है। अच्छा, अब इसमें जो बारीक नुक्ता है ना वो ये कि ये दुरूद शरीफ है, इसमें सलाम शामिल नहीं है। इस वजह से बाद उलमा ने इसको मना किया है। यानी बेहतर ये है कि दुरूद और सलाम पढ़े, लेकिन नमाज में यही अफजल है और नमाज के अलावा पढ़े तो कोई हरज नहीं है। लेकिन बाद उलमा का कौल है ये कि चूंकि इसमें सिर्फ दुरूद शरीफ है और लफ्ज सलाम नहीं है, इसलिए क्योंकि कुरान करीम में ना वो इससे इस्तेदलाल करते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर खूब दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। यूं मतलब कि इसमें सलाम नहीं है, लेकिन नमाज में यही पढ़ना है कि मनसूस है, ये हदीस पाक में ये आया है, तो यूं पढ़ने में हर्ज नहीं है। तो ये बाद उलमा का कौल मैंने अर्ज किया, ये वो नहीं है, फाइनल नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेर आला हज़रत का बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अगर ये दुरूद ना पढ़ना होता तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ये का जो शेर इसमें लफ्ज दुरूद है, लफ्ज सलाम इसमें शामिल नहीं है। तो यूं कोई ऐसा हरज नहीं, बास का कौल है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि सबसे अफजल दुरूद कौन सा है, वो खारिज में पढ़ने के हवाले से पूछा गया है। तो सवाल से फरमाया कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नमाज के अलावा भी जो अफजल दुरूद लिखा है वो दुरूद इब्राहिमी लिखा। पूछा गया कौन सा सबसे अफजल दुरूद है, तो फरमाया वो कि जो नमाज के अंदर रखा गया है। नमाज के अंदर रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि मस्जिद ज़ेर तमीर है और मस्जिद तमीर कर रहे हैं, क्या उसी दौरान अगर रकम कम पड़ जाए, क्या मस्जिद का मतवल्ली और मस्जिद के ज़िम्मेदारान अपनी जेब से पैसे लगाकर क्या बाद में पैसे वापस ले सकते हैं? इसकी शर्न क्या हैसियत है? अब जेब से अगर इस तरह लगाते हैं कि वापस लेंगे, तो जिससे लेंगे उसको भी पता होना चाहिए, तो वो एक नई सूरत होगी कि आपने जो खर्चा किया तो ये उसको आपको माली बदला दे दें। वरना ये कि मुफ्ती साहब मजीद क्या देखिए इरशाद फरमाते हैं। इस तरह है जैसे आपने इरशाद फरमाया है कि देने के लिए उनको जो है एक तो गवाह बनाना होंगे ताकि बाद में किसी तरह की जो तोहमत न लगे कि हम ये जो रकम लगा रहे हैं वो अपने कर्ज के तौर पर लग रहा है। फिर इसके बाद जब चंदा लिया जाएगा तो उनको बता के लिया जाएगा कि इसके जरिए से मस्जिद का जो कर्ज हमने दिया है उसकी अदायगी के लिए वापसी ले रहे हैं। उमूमी चंदे से फिर इनके कर्जे की अदायगी नहीं होगी। यही है कि उसको बता दिया जाए कि हम ये खर्चा जो हुआ है इसमें, तो वो हम उसमें इसको जैसे कर्जा है वो कर्जा हम इससे ले लेंगे। तो ये हमने जो लगाया था पैसा, वो अगर हाँ बोलता है तो, बाकी हम चंदा मस्जिद का किया उसमें से ले लिया तो ये जायज़ नहीं है। जी मुफ्ती साहब ने ये फरमाया, हमने भी ये रहनुमाई ली थी कि जैसे अगर किसी ने कर्जा दिया है तो आप जिससे चंदा लेंगे ना उसको ये बताना होगा कि ये पैसे जो हम आपसे ले रहे हैं ये इस मस्जिद पर एक कर्ज है जो उतारने के लिए ले रहे हैं, ना कि मुतलकन मस्जिद के लिए चंदा करके फिर उसमें से पैसे दिए जाएं। तो यही मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, शायद आवाज़ में भी कुछ प्रॉब्लम है। जी जी
मोहम्मद रियाजत तारी ज़िला साहिवाल से 3 रोज़ा तरबीती नशिस्त खुदामल मसाजिद फैज़ान मदीना में हाजिर हूँ। आपकी खिदमत बाबरकत में सवाल अर्ज़ ये है, क्या मस्जिद की चटाइयाँ, मस्जिद का मैक, मस्जिद का पानी का पैप और सीढ़ी वगैरह क्या दूसरी मस्जिद या मदरसे में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। जिस मस्जिद के लिए आपने चंदा लिया है तो अब वो उसी मस्जिद में इस्तेमाल होगा, दूसरी मस्जिद या मदरसे में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में सवाल ये है, अगर ईद उल फित्र कोई मक्कातुल मुकर्रमा में मनाता है तो क्या उस पर हज फर्ज हो जाएगा? इसकी रहनुमाई फरमाइए, जज़ाकल्लाहु खैरा। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई शव्वाल के अंदर मक्का मुकर्रमा में हो तो उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता हो। हज के अपने शराइत हैं, यानी ये हमारे यहाँ एक तादाद के अंदर इस तरह मशहूर है कि अगर कोई शव्वाल में मक्का मुकर्रमा के अंदर होता है या ज़ीक़ात के अंदर मक्का मुकर्रमा में होता है या किसी ने शव्वाल के महीने के अंदर उम्रा कर लिया है तो उस पर हज करना फर्ज हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। हज के अपने शराइत में जब वो पाए जाएंगे तो फिर इस सूरत में हज फर्ज होगा। तो वो चाहे ज़िलहज के महीने में वहाँ पर हो, चाहे ज़ीक़ात के महीने में वहाँ पर हो, चाहे वो शव्वाल के महीने में वहाँ पर हो, जब हज के शराइत पाए जाएंगे और उस पर हज फर्ज होगा तो फिर उसको हज अदा करना। इसमें एक और कन्फ्यूजन भी रहती है कि ये भी जहन में रहे कि हज ज़िंदगी में एक बार ही फ़र्ज़ है। बाज़ लोग तो ये कह रहे होते हैं कि मैं तो पहले ही हज कर चुका हूँ लेकिन शव्वाल में उम्रा कर लिया तो दोबारा फ़र्ज़ हो गया है। तो वैसे ही हज तो एक ही बार फ़र्ज़ है, अगर वो अदा हो गया तो वो कर लिया, और उसके बाद भी जैसे मुफ्ती साहब ने बता दिया कि हज के शराइत पाए जाएंगे तो फिर किसी एक पर फ़र्ज़ होगा, एक बार जिसने कर लिया उस पर तो फिर नहीं होगा ना मुफ्ती साहब। सैयदी ये इरशाद फरमाइए, अगर एक इस्लामी भाई की नीयत ये है कि मैं अपने ज़ाती रकम से मदीना और मक्का देखूं और कोई दूसरा इस्लामी भाई उसको ऑफ़र करे कि आओ आपको मैं मदीने भेजता हूं, तो या सैयदी वो इस्लामी भाई उसको मना करते कि नहीं मैं अपने ज़ाती पैसों से मदीना देखना चाहता हूं, तो या सैयदी ऐसा कहना कैसा मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी की दुआ फरमा दीजिए। अगर दिल आज़ार अंदाज ना हो और नॉर्मली अगर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़ाती रकम से मदीना देखना चाहता हूँ, सफ़र कर सकता, तो अच्छी बात है, कोई बुरा इसमें सामने वाले को बुरा लगाना भी कोई क्यों बुरा लगाएगा, उसके तो पैसे बचेंगे, कोई हर्ज नहीं कहने में। अच्छी बात है कि किसी के माल पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, अपने पैसों से ही आदमी करे, मज़ा इसी में। जैसे हमारे यहाँ किताब कोई तोहफे में मिल गई तो पढ़ेंगे और खर्च पल्ले से खरीद कर नहीं पढ़ेंगे, रिसाला भी कोई तोहफे में दे दे तो पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ा। बाकी दुनियावी चीजें लाख वो खरीदेंगे अपने पल्ले से, अपनी जेब से, लेकिन दीनी किताब मुफ्त मिलनी चाहिए। ये नेचर बहुत खराब नेचर है, जेब से खर्च करेंगे सवाब ज्यादा मिलेगा ना। एक रहनुमाई फरमाएं, किसी ने हज करने के लिए किसी को 15 लाख रुपए दिए, आजकल तो हज वैसे ही महंगा है, 15 लाख रुपए दिए, वो उसने जाकर माशाल्लाह हज की साथ, अनमोल है, हज सस्ता महंगा नहीं होता, हज अनमोल है, हज अनमोल है, खर्चे बढ़ गए, सफर के खर्चे बढ़ गए जी। तो 15 लाख रुपए हज पर खर्च उसने दिए कि ये 15 लाख रुपए आप लें। अब वो गए और माशाअल्लाह हज भी हुआ, सब ज़ियारत मदीना और सारा वो सिलसिला हुआ, और अब क्या वो बेहतर ये है कि शॉपिंग वगैरह भी उसी के पैसे से करे, या बेहतर ये है कि वो हज का जो ये ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ें वो तो उसके पैसे से कर ले, और जो बच जाए, मिसाल के तौर पर 12 लाख रुपए उसने ये सारे ट्रांसपोर्टेशन हज वगैरह का था, बाकी 1-1.5 हो सकता है उससे ख़रीदारी भी की हो, तो यानी ख़रीदारी अपनी जेब से कर ले, और बाकी जो 3 लाख रुपए बचे हैं वो आकर उसको दे दे कि ये आपने 15 दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैंने हज कर लिया, मदीना देख लिया, ये 3 लाख रुपए बचे हैं, ये मैं आपको वापस करता हूँ।
کہ وہ 3 لاکھ روپے رکھ لے یا اس میں دوبارہ اور بھی خرچ کرے. یعنی اس نے مطالبہ نہیں کیا کہ 15 لاکھ میں سے بچے مجھے واپس کر دینا, لیکن جس کی اس طرح کسی نے مطلب کہ اس کو دی ہے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اور زیادہ بہتر کیا ہے, ذرا اگر اس تعلق سے آپ مدنی پھول عطا فرمائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو فائدہ ہو جائے. دیکھیں, حج بدل کے لیے اگر کسی نے رقم دی ہے نا, پھر تو عرف سے ہٹ کر 1 روپیہ بھی خرچ اس میں سے نہیں کر سکتا, اور بچہ تو وہ تو دینا ہی ہوگا اس کو. اور یہ جو شاپنگ جو ادھر ادھر کی ترکیب ہوتی ہے نا, یہ حج البدل کا حصہ نہیں ہے, تو پلے سے کرنا ہے اگر کرنا ہی ہے تو. رائے یہ کہ ویسے ہی کوئی دے دے کہ یار میری طرف حج کر کے آؤ, تو اس میں اگر یہ واپس دے دے تو اچھی بات ہے. اب اگر اس نے ہبا کر دیا ہے رقم, تو گفٹ کر دی ہے, تب تو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی دیتا ہے تو ایک جدید نیو گفٹ ہوگی ہے اگر وہ دیتا ہے تو, جبکہ وہ 15 پر قبضہ کر لیا ہے. اور خالی حج کے لیے پیسے دے کے جاؤ, اس سے حج کر کے آ جاؤ, تو اس میں اگر پیسے بچتے ہیں تو واقعی دے دینا مناسب ہے. حضور اس میں اب تو کیونکہ وہ اب تو جو حج ہوتا ہے نا, ادھر ادھر کی جو شاپنگ ہو رہا ہے نا, یہ ظاہر اس کا حصہ نہیں ہے حج کا. حضور اب جو حج ہوتا ہے نا, وہ پہلے جو حج درمیانہ کھانا بھی درمیانہ کھائے, کھانا بھی درمیانہ کھائے, یہ نہیں کہ وہ اعلیٰ مطلب روز مرغے مسلم اڑاتا رہے, اس کے سارے پیسے ختم کر دے. بچہ کر دے گا تو فائدہ ہوگا. بہت پہلے میرا اپنا ایک ماضی کی یاد ہے کہ کسی نے حج بدل کے لیے پیسے دیے تھے, اس کا تو ایک پورا قصہ ہے. خیر, تو وہ میں نے بچا کر رقم اس کو دی, تو یہ بڑا اس کو تعجب ہوا, تو اس کو بولا کہ اس میں سے اس کو بولو کہ عمرہ کر لے. تو یوں میری دوبارہ عمرے کی ترکیب بن گئی تھی. تو دینے سے آدمی خوش ہوتا ہے, اور حج البدل میں تو خیر بچ گئے, تو دینا ہی پڑے گا. ہاں, اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حج البدل میں اگر جس نے خرچہ دیا ہے حج بدل کا, وہ اگر رقم بچ گئی اور وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ یہ رقم تم اپنے قبضے میں لے لو, پھر جو چاہو کرو, تو یوں اپنے قبضے میں لے کر یہ آگے اپنی شاپنگ وغیرہ کر سکتا ہے. آپ حاجی عبدالحبیب بھی کچھ فرما رہے تھے. جی حضور, یہ جو پہلے حج ہوتے تھے نا, آج سے کچھ سال پہلے, تو وہ سپانسرشپ وغیرہ کا حج ہوتا تھا. تو اس میں بعض 2 قسم کے حج ہوتے تھے. ایک تو وہ ہوتے جس میں پیسے واپس ملتے تھے. اب وہ پیسے واپس جب ملتے تھے, اس سے ہم اپنا خرچہ خود کرتے تھے, تو پیسے بچ بھی جاتے تھے. جو کفایت سے کام کرتا تھا اس کے پیسے بچ جاتے تھے. اچھا, ایک دوسرا حج یہ ہوتا تھا جس میں پیسے لے کے جانے پڑتے تھے اور وہاں جا کے رہائش وغیرہ خود ڈھونڈنی پڑتی تھی, اس میں بھی پیسے بچ جاتے تھے. اب جو حج ہو رہے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ اسکیم کے حج ہوں چاہے پرائیویٹ کے حج ہوں, اس کا پورا پیکیج ہی اناؤنس ہوتا ہے, جس میں کھانا, رہائش, خیمہ سب شامل ہے. تو ہم بھی حج بدل چونکہ دعوت اسلامی کے تحت کرواتے ہیں, تو ہم جو دینے والا ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنے لاکھ کا حج ہے اور اتنے دن کا پیکیج ہے, تو وہ اس پیکیج کے ہی پیسے دیتا ہے. وہ پیسے ہم گورنمنٹ میں جمع کروا دیں یا کاروان کو دے دیں, تو اب اس میں واپسی کی بچت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. ہاں, اس کے بعد ہم اس سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کو کچھ خرچے کے لیے, ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی بندے کو ضرورت ہو, اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو بعض لوگ خوشی سے کچھ اوپر پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ان کو دے دیں, تاکہ اگر کھجور وغیرہ بھی لانا چاہیں یا کچھ ایکسٹرا کھانے پینے کی ضرورت پڑے. تو اب وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں حج میں پیسے بچتے ہیں اور بندہ کم خرچ کر کے بچا کے لے آئے. یہ پیسے تو پورے چلے جاتے ہیں, اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. چاہے گورنمنٹ اسکیم میں کوئی جائے چاہے پرائیویٹ حج میں کوئی جائے, تو جتنے کا پیکیج ہے وہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے. اس میں رہائش, کھانا پینا, خیمہ, ٹرانسپورٹ تقریباً سب شامل ہوتا ہے. تو اس میں 1 روپیہ بھی اس پیکیج سے واپس نہیں ملتا ہے. یہ تو آپ نے اپنے ملک کی بات کی نا, پاکستان کی. ہمارے ملک میں یہ سسٹم ہے, تو ساری دنیا میں یہ سسٹم ہو یہ ضروری نہیں ہے نا. اور مدنی چینل تو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے نا, تو مسئلے تو وہی بیان ہو گئے نا جو کتابوں میں لکھے. جی, بجائے ارشاد فرمائیں.
अच्छा, अब गौरतलब बात ये है कि अगर किसी के पैसे यूँ बच गए, जैसा कहा अब्दुल हबीब भाई ने कि यूँ अल्लाह को भी दिए थे ना, वो बच गए, जो बचे हुए पैसे वो मुर्शिद की अदा को अदा करने के लिए उसने जाकर वापस करे, तो उसने तो मुर्शिद की अदा कर लिया, वो उसने अगर उसकी अदा ना की कि ये रख लो उमरा करके आ जाना, तो ये थोड़ा सा लगता है कि यूँ बोलेगा यार वो मैंने तो एक अदा कर ली, आपको कोई अदा याद है मदनी मुज़ाकरे की, तो यूँ थोड़ा सा ज़हन में आ रहा था। अमीर सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि जो लोग जिस्म पर टैटू वगैरह बनवाते हैं, तो अब टैटू वगैरह बनवाने के बाद अगर उससे तौबा कर लें तो क्या उसकी नमाज और गुस्ल वगैरह हो जाएगा, या उसे वो टैटू अपने जिस्म से हटाना पड़ेगा? ये टैटू जो है ना, ये एक सूरत तो ये होती है कि खाल को गुदवा कर इसके अंदर कुछ केमिकल या सुरमा या जो भी है वो भरा जाता है, ये तो निकलता नहीं है, इसके लिए तो बाकायदा शायद सर्जरी होती है। तो ये तो है तकलीफ दे प्रोसीजर। अगर किसी का आसानी से निकल सकता है तो थोड़ी सी तकलीफ में तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि जमाल मकसूदा में फर्क तो आ रहा है, खाल की तब्दीली तो हो गई है, जो कुदरत ने बनाई है खाला वो वैसी ना रही, इसमें वो निशान बने हुए या बाजू का दिए सांप और बागड़े बिल्ले भी बनाते लोग, तो ये तो खतरनाक चीज है। अच्छा, बाद एक सूरत तो ये, तो ये अंदर में है, तो बाहर से अगर वैसे भी वुजू गुस्ल ये सब हो जाएगा, अंदर पानी खाल के अंदर पानी पहुंचाना तो वैसे ही फर्ज नहीं है ना, इसके कोई सूरत है। अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि कोई केमिकल वगैरह खाली खाल के ऊपर लगा लेते हैं, इस तरह भी ये टैटू बन रहे हैं, तो अब ये इसका जिर्म लग जाता है ना जिस्म इन चीजों का, एक यानी कि मतलब वो ते जमाते हैं, तो ये ते उतार कर इसके नीचे पानी बहाना फर्ज है। बहरहाल लेके तौबा दोनों सूरतों में करनी है। तो अल्लाह ताला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुझे अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल करना था कि मोहम्मद नबी, क्या ये नाम अब कोई भी मुसलमान अपने लिए रख सकता है? नाजायज है। बाहर शरीयत में लिखा है मोहम्मद नबी, अहमद नबी, मोहम्मद रसूल, अहमद रसूल, नबीयुस ज़मान नाम रखना भी नाजायज है। मजीद फरमाते बल्कि बाज का नाम नबीयुल्लाह भी सुना गया है। गैर नबी को नबी कहना हरगिज हरगिज जायज नहीं हो सकता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि हज फ़र्ज़ होने के लिए क्या कैश रकम होना ज़रूरी है, या फिर अगर प्रॉपर्टी हो या सोना चांदी हो या किसी और सूरत के अंदर अगर मालियत मौजूद है तो क्या फिर भी हज करना फ़र्ज़ होगा? रकम तो पहले दौर में तो रकमें गालिबन होती भी नहीं थी, या होती हो तो बारह लेके इन्हें इस्तिताअत पाई गई हज की के ऐसा माल है इसके पास कि जो मतलब है कि बेच कर भी ये खर्चा उठाएगा, तो नहीं ये कर्जे में डूबेगा, ना इसका कोई वो दिवालिया निकल रहा है, कुछ भी नहीं, तो ये हज की फर्जियत में आ तो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि कुछ खजूरों के रेपर पर काबा मुअज़्ज़मा और गुंबद खज़रा का नक्श होता है, तो हम इसे बेअदबी से कैसे बचाएं? के पैकेट पर मदीने शरीफ से जो खजूरें आती है उस पर सब्ज गुंबद बना हुआ होता है, तो ज़ाहिर है कि वो जो पैकेट है तो वो
एक एक फेंका ना जाए, बल्कि वो मुकद्दस औराक के जो बॉक्स होते हैं उसमें डाल दिया जाए, ठंडा करने में डाल दिया जाए, खुद ठंडा कर दे। पानी समुंदर वगैरह में, नहर में कोई वजन के साथ इसके तले में बिठा दे, ताकि वहां ये यूं डालेंगे, नहर तो वैसे ही मुश्किल है, नहर में तो बहकर कहीं भी किनारे आ जाएगा। दरिया हो, समुंदर हो, वो ज्यादा मुनासिब होता है। हमारे यहाँ जो औराक के मुकद्दसा का जो सिस्टम है, तो उसमें भी यही मतलब तरकीब होती है कि इसको बीच दरिया में दूर गहरे पानी में जाकर डालना होता है। बोरी में शिगाफ भी डालते, चीरे, ताकि पानी अंदर चला जाए। फिर जरूरतन को पत्थर वगैरह भी डालते होंगे ताकि ये तले में बैठ जाए, वरना तो किनारों पे चले जाएगा और बेहद भी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्जी है कि शादी हाल बनाना कैसा, बराए करम जवाब इनायत फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरा। कोई अर्ज नहीं है इसमें, किराए पर जो देते हैं शादी हाल, अगर खुद नाजायज को काम करता है इसमें, वो एक अलग सूरत है, वरना ये कि मुतलकन शादी हाल बनाना या उसमें शादी के लिए किराए पर देना, किराया उसका लेना, ये सब जायज सूरत है इसकी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब घर किराया देना कैसा किसी को, घर में तो टीवी लॉन्च में बना होता है, टीवी भी रखते हैं, फिल्में ड्रामे भी देखते हैं, पता नहीं क्या क्या, और शराबें भी पीते होंगे। तब खास शराब पीने के लिए घर कोई थोड़ी देता है, घर तो रहने के लिए दिया जाता है। अब जो घर में अपने तौर पर जो लोग गुनाह करते हैं, इसके वो जिम्मेदार हैं। देने वाले ने खुद गुनाह करने के लिए तो घर दिया नहीं है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर इस्लाम की बारगाह में सवाल है कि हजर अस्वद के पास से जो तवाफ होता है, तो अगर हम लोग तवाफ नहीं कर रहे, हम किसी अपने घर के फर्द को ढूंढ रहे हैं और हजर अस्वद से ही ढूंढना शुरू किया और दोबारा घूमते हुए हजर अस्वद की तरफ आ गए, तो क्या तवाफ हम पर वाजिब हो जाएगा? अगर तवाफ की नियत ही सिरे से नहीं है, सिर्फ मतलब है किसी को ढूंढने के लिए घूम गए, तो ये तो तवाफ तो नहीं हुआ ना। तवाफ शुरू ही नहीं हुआ तो वाजिब क्या होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि हया को बढ़ाने का कोई अमल या कोई वजीफा इरशाद फरमा दीजिए। हया के ताल्लुक से मालूमात हासिल करें। बाहया नौजवान मकतबतुल मदीना का बहुत प्यारा रिसाला है, ये अगर पढ़ ले तो मदीना मदीना हो जाएगा। हया के माना है ऐब लगाए जानने के खौफ से झेपना, यानी शर्माना या लजाना। इससे मुराद वो वस्फ यानी खूबी है जो इन चीजों से रोक दे जो अल्लाह पाक और मखलूक के नजदीक नापसंदीदा हो। लोगों से शर्मा कर किसी ऐसे काम से रुक जाना जो इनके नजदीक अच्छा ना हो, मखलूक से हया कहलाता है। हया की नशो नुमा यानी हया बढ़े, इसमें माहौल और तरबियत का बहुत अमल दखल है। हयादार माहौल मुयस्सर आने की सूरत में हया को खूब निखार मिलता है, जबकि बेहया लोगों की सोबत कल्ब और निगाह की पाकीज़गी सल्ब करके निकाल कर बेशर्म कर देती है और बंदा बेशुमार गैर अखलाकी और नाजायज कामों में मुब्तला हो जाता है। इसलिए कि हया ही तो थी जो बुराइयों और गुनाहों से रोकती थी। जब हया ही ना रही तो अब बुराई से कौन रोके। हदीस पाक में बेशक हया और ईमान आपस में मिले हुए हैं, तो जब एक उठ जाता है तो दूसरा भी
उठा लिया जाता है। एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, बेशक हर दीन का एक खुल्क है और इस्लाम का खुल्क हया है। यानी हर उम्मत की कोई ना कोई खास खसलत होती है जो दीगर खसलतों पर गालिब होती है, और इस्लाम की वो खसलत, वो आदत, वो वस्फ, वो खूबी हया है। हदीस मुबारका में कि बेहयाई जिस चीज में हो उसे ऐबदार कर देती है, और हया जिस चीज में हो उसे जीनत बख्श देती है, उसे जीनत बख्शती है। तो बेहयाई तो बहुत बुरी सिफत है कि बेहयाई तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस करती है, और हया बहुत सारे गुनाहों से बचाती रहती है। तो बेहया लोगों की सोबत, गंदी बातें करने वालों की सोबत बंदे को बेहया बनाएगी। गंदे ड्रामे, फिल्में, सोशल मीडिया के गंदे क्लिप भी बेहया बनाएंगे, और बाहया लोगों की सोबत, अल्लाह के नेक बंदों की सोबत, आशिकाने रसूल की सोबत, तो ये हया पैदा करेगी। हया की बातें सुनने से हया का ज़हन बनेगा, बेहयाई की बातें सुनते रहने से बेहयाई का ज़हन बनेगा। तो जो मतलब इस तरह की सोबतों में रहते हैं ना, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं इनकी बातों में हिस्सा भी नहीं लेता, बस खाली इनके साथ होता हूँ, तो ये भी उसकी बातें बेहयाई के सुन सुनकर इसका दिमाग तो बेहयाई को कबूल करेगा और बेहयाई बनेगी। तो असोहबत व मुअस्सिरा, सोहबत असर रखती है। अच्छी सोहबत अच्छा, बुरी सोहबत बुरा असर रखती है। सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनत। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। तो इसलिए वो बाहया लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये जो मेरे गिर्द नजर आ रहे हैं, ये वो बाबरकत दरख्त है जिसके लिए 70 अंबिया कराम ने बरकत की दुआ मांगी। जी हाँ, ये जैतून है। दुनिया के अंदर जितना भी जैतून पैदा होता है सिर्फ 10% खाया जाता है, बाकी 90% का ऑयल यानी जैतून का तेल बना लिया जाता है। कदीम जमाने में जैतून के तेल को व्हाइट गोल्ड यानी पिघला हुआ सोना कहा जाता था, और माजी के अंदर ये सिर्फ कुकिंग के लिए नहीं बल्कि परफ्यूम के तौर पे, साबन के तौर पे, मजहबी रसूमात में, बल्कि कदीम जमाने में तो मुर्दों को नहलाने के लिए, और जब वो मुर्दों को कब्र में रखते तो जैतून की शाखों से उसको कवर किया करते थे। दुनिया में जितना भी जैतून पैदा होता है उसका 90% जो है उसका तेल बना लिया जाता है, सिर्फ 10% डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है। 100 किलो जैतून से 10 से 13 लीटर जैतून का तेल निकलता है, और ये जैतून का तेल तारीख इंसानी में हेल्दीएस्ट और मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड समझा जाता है। बेहतरीन गजाइयत से भरा हुआ खाना है। और एक हैरत अंगेज बात, जैतून के फल को डायरेक्ट दरख्त से उतार के खाना बहुत मुश्किल है। इसमें एलोरोपिन होती है जो बड़ा तुर्श सब्सटेंस है, इसलिए उसको पहले प्रोसेस किया जाता है, नमक में रखा जाता है, कुछ और ऐसा काम किया जाता है ताकि खाना आसान हो जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा जैतून स्पेन में पैदा होता है। क्यों ऐसा है, इसकी हमने हिस्ट्री को ट्रैक किया तो पता चला इम्पैक्ट ऑफ अरब ऑन स्पेन लेड टू द एडवांसमेंट इन ऑलिव प्रोडक्शन, के अरब के लोगों का जो स्पेन के ऊपर असर और रसूख था जब वो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वहां पे जैतून की पैदावार के कई तरीके मुतारिफ करवाए। और आज स्पेनिश के अंदर तेल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है एसेटे, वो दर हकीकत अरबी के जैत तेल से ही लिया गया है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि हुजूर जैतून के कुछ फवायद इरशाद फरमाइए, इसको किस अंदाज से इस्तेमाल किया जाए और इस्लाम के अंदर इस फल की क्या अहमियत है। वत्तीन व जैतून, इंजीर की कसम और जैतून की। तफसीर खाजिन और रुहुल बयान वगैरह में इस आयत में अल्लाह पाक ने इंजीर और जैतून की कसम इरशाद फरमाई, क्योंकि इन चीज़ों में ऐसे फ़वाइद और मुनाफे मौजूद हैं, ऐसे फ़ायदे मौजूद हैं जो इनके खालिक रब तआला की कुदरत पर दलालत करते हैं
जैसे इंजीर इंतहाई उम्दा मेवा है जिसमें फुजला है ना, फारे है ना, ज़ाया होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, फुजूल न इसमें बीज फेंकने वाले होते हैं ना इनका कोई छिलका फेंकने का होता है। ये इंजीर पूरा पूरा खाया जाता है, कुछ भी फाजिल चीज़ इसमें नहीं होती। और ये बहुत जल्द हजम होने वाला, इंजीर जो है बहुत जल्द हजम होने वाला, ज्यादा नफा देने वाला, यानी फायदा इसका ज्यादा है, कब्ज दूर कर देने वाला, मसाने में मौजूद रेत और पत्थरी, मसाने में मौजूद रेत और पत्थरी निकाल देने वाला, जिगर और तिल्ली में फंसी गंदे मवाद की गांठ को खोल देने वाला, बदन को फरबे यानी हेल्थी करने वाला, और बलगम को छांटने वाला है, बलगम भी निकालता है। जबकि जैतून, ये अब जैतून शुरू हो रहा है, जबकि जैतून एक मुबारक दरख्त है, इसका तेल रोशनी के काम लाया जाता है, सालन की तरह खाया भी जाता है, और ये वस्फ दुनिया के किसी तेल में नहीं। इसका दरख्त खुश्क पहाड़ों में पैदा होता है जिनमें चिकनाई का नाम और निशान नहीं, बगैर खिदमत के परवरिश पाता है और हजारों बरस बाकी रहता है। तो यूं जैतून के बड़े फवायदे, ये तो डॉक्टर भी इसको तस्लीम करते हैं कि जैतून का तेल दिल का मरीज भी इस्तेमाल कर सकता है, कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि कच्चा तेल खाया जाए, कच्चा तेल खाने में कोई मसला नहीं होता। अरब दुनिया में तो धूम से खाया जाता है, वो कोई चीज लेते हैं तो बाज ऐसी गिज़ा होती है इसमें कच्चा तेल, यूं मतलब जिस तरह हमारे यहाँ वो चटनी डाली जाती है ना, इस तरह यह तेल डालते हैं, जैतून का तेल कच्चा खा सकते हैं, आप शौक से खाएं, कुछ भी आप ट्राई कर लें। ये कच्चा तेल इसके अपने फवायद हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को काटता है, निकालता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि इमाम साहिब चंद अरसे कुछ माह कुछ साल इमामत फरमाते हैं, तो किसी और जगह वो तशरीफ़ ले जाते हैं। नए इमाम साहब जब तशरीफ़ लाते हैं तो वो मस्जिद इंतज़ामिया से कहते हैं कि आप फैमिली रिहाइश का इंतज़ाम करें। तो मस्जिद इंतज़ामिया के जो अफराद होते हैं वो ये कहते हैं कि पहले वाले इमाम साहिब भी बग़ैर फैमिली के यहाँ पर रहते थे, तो ऐसे में फैमिली रिहाइश के ताल्लुक से आप मस्जिद इंतज़ामिया के लिए क्या मदनी फूल अता फरमाएंगे और इमाम साहिबान के लिए क्या मदनी फूल अता फरमाएंगे? माशाअल्लाह सर, हमारे यहाँ उर्फ तो है कि इमाम साहब को आमतौर पर मकान दिया जाता है, और अगर कहीं नहीं भी दिया जाता तब भी अगर इमाम साहब कहते हैं कि मुझे रिहाइश का इंतज़ाम कर दो तो इसमें हरज नहीं है। और कमेटी को भी चाहिए कि अपने हम इंतज़ाम रखें रिहाइश का इमाम की। अगर वो बाल बच्चे वाला है तो बाल बच्चों के साथ वो रह सके, ऐसा भी इंतजाम कर देना चाहिए। इस तरह करेंगे तो आपको इमाम भी एक अच्छा मिलेगा, इसको बोलते हैं ना वो अच्छा सही चलने वाला। बाद इमाम के साथ मसाइल हो जाते हैं तो वो मकान की वजह से वो जमा रहेगा कि फिर अगर यहाँ मैंने कुछ किया और अगर ये नाराज हो गए और मेरी छुट्टी हो गई तो मेरी मकान भी तो जाएगा हाथ से। तो ये एक मतलब ज़िमनी फायदा भी हो सकता है। ताम ये कि मकान मांगने में हरज नहीं, इसको बुरा बुरा कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में निजाम बने हुए हैं, लोग फैक्ट्रियों में इधर उधर काम करते हैं, सबको मकान लोग इन्हें जगह देते हैं कि इनका फायदा होता है कि इनके जो भी मुलाजिमीन है ये इनके अंडर में रहते हैं। तो ये इमाम के लिए भी हमारे यहाँ आमतौर पर मकान दिया जाता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लैला 11वीं वाले दाना वाले दाना वाले दाना ते डूबी हुई तारी जाएगी, डूबी हुई तारी जाएगी, डूबी हुई तारी जाएगी। मुर्शिद
الحمدللہ عز وجل مجلس جامعات المدینہ کراچی سٹی کے تحت مختلف جامعات المدینہ میں ماہانہ 11ویں شریف منانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں فاتحہ اور نیاز کی کئی جامعات المدینہ کے اندر ترکیب بنائی گئی، جس کے چند مناظر آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ فیض غوث اعظم فیض غوث اعظم یوں پاتے رہیں گے، گیارہویں شریف منا۔ الحمدللہ پچھلے چند دنوں پہلے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ وغیرہ کے ساتھ مشاورت بھی ہوئی تھی کہ امیر سنت کا یہ ایک معمول معنی 11ویں شریف منانے کا، تو جامعۃ المدینہ میں بھی 11ویں شریف ہر ماہ منانے کی ترکیب کچھ نہ کچھ تھی، بجے کہ ملک گیر اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہوگی، تو گویا کہ یوں سمجھے کہ اس کے کچھ نہ کچھ مناظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ اور انشاءاللہ گھر گھر بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ۔ प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत जी बारगाह में अर्ज़ आहे त कुझु माण्हू पंहिंजे शहर खे छॾे करे ॿिए शहर हलिया वेंदा आहिनि, उते लॾ पलाण करे उते पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि। उन्हनि मां जेकॾहिं कंहिंजो इंतकाल थी वेंदो आहे, कंहिंजे बाबा ॾाॾा नाना नानी वग़ैरह जो, त उन्हनि जो ज़हन इहो हूंदो आहे त जिते असां पहिरीं रहंदा हुआसीं, असांजो क़ब्रिस्तान जिते आहे आबाणो क़ब्रिस्तान, त असां पंहिंजे वॾनि खे उते दफ़न कयूं। त छा इहो उते दफ़न करणु लाज़मी हूंदो आहे, या जिते हू रिहाइश इख़्तियार कनि था उते ई उहे पंहिंजे क़ब्रिस्तान जे अंदरि, पंहिंजे शहर जे क़ब्रिस्तान जे अंदरि उन्हनि खे दफ़न करे सघनि था? इन जे मुतालिक़ कुझु रहनुमाई फ़रमाईंदा। बेहतर इहा आहे कि सालिहीन अल्लाह जे नेक बंदे जे नज़दीक उन्हनि खे दफ़न करण में अचे, मैयत के, मुसलमान जी मैयत के, ये बेहतर है। अगर मुयसर ना आहे तो पोइ पंहिंजे रिश्तेदारनि में ख़ानदान जेको हूंदो आहे वो उन्हनि में दफ़न करे, वरना आम मुसलमाननि जे क़ब्रिस्तान में दफ़न करे। हाणे इन लाइ करे ने मुख़्तलिफ़ शहरे से सफ़र, मुख़्तलिफ़ मुल्कनि से सफ़र ही मुनासिब कान्हे। इनसे बसा औकात मैयत के ॾाढी तकलीफ़ थिए थी। मसलन तव्हां ॿिए मुल्क से वठी ईंदा तो हीअं लाश थोड़ी ईंदी, इनजो पेट चाक कंदा, पेट चाक करे इनजो जेको अंदर जो आलात आहिनि उहो सभु कढी छॾंदा, पोइ इनके मतिलबु ख़ूब मसाला केमिकल विझी करे सिलाई करे ने तव्हांखे हलाइना। इलाही तकलीफ़ जे साथ वो मैयत कई रोज़ जे बाद तव्हांजे वतन में ईंदी, बर्फ़ में रहंदी ने, मतिलबु इन लाइ करे मतिलबु ही के दूर दूर गिनी वञो ना आहे मतिलबु मुनासिब। इनके करीब कब्रिस्तान में जल्दी जल्दी दफ़न करण में अचे। लोग माण्हू जमा करे लाइ या रिश्तेदारनि उते से पुट अची वियो, उते से धीउ अची रही आहे, इन लाइ करे इंतज़ार लाइ करे वो बर्फ़ खाने में रखंदा आहिनि, हीअ बि तकलीफ़ दे मामलो आहे, हीअ बि ना करण में अचे। जल्दी हदीस में तो ही तरगीब आहे कि जल्दी दफ़न करे ॾिन अचे। अगरि नेक माण्हू आहे तो पंहिंजे सवाब ते अजर ते पुगे, नेमत ते पुगे ने। अगरि अल्लाह जी न इल्म में ये बद माण्हू आहे, बुरो माण्हू आहे, तो इनके जल्दी पंहिंजी गर्दन से इनके दफ़ा करियो। लेकिन ख़ैर मूंखे नथी ख़बर हुजे कि हीउ माण्हू सुठो आहे या बुरो आहे। हुस्न ज़न ई रखिणो आहे कि इंशाअल्लाह सुठो हूंदो, अल्लाह जी रहमत ते वेंदो, तो इनके जल्दी जल्दी फारिग करे ॾियणो खपे। पिछले दिनों जापान के सफ़र में 2 मकामात पर मुझे मौका मिला जहाँ पर ये बयान किया, और कुछ अहम लोग भी वहाँ मौजूद थे। 2-3 जगहों पर ऐसा हुआ। तो
یہی کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر آپ مہربانی کر کے اپنی تدفین کا دفن کا انتظام رکھیں. یہ اپنے ملک میں میت بھیجنے کا جو سلسلہ ہے تو اسے کافی پسند بھی کیا گیا اور اس کو لیا بھی گیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس طرح کی ترغیب دلائی تو باقاعدہ وہاں پر موجود, کیونکہ اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے بیان کر دیا تو ان کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ ابھی زندہ ہیں, آپ ابھی سے یہ کہہ دیں, اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیں جہاں سے آپ جس ملک سے آئے ہیں کہ بھائی میرا اگر, کیونکہ تمنا تو یہ کرے کہ میں مدینے میں, اللہ پاک ہمیں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرمائے کہ وہ مدینے میں مجھے مرنا ہے. لیکن اگر جہاں آپ ہیں اگر وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر آپ اب بھی آج اپنی وصیت کر دیں, یعنی سمجھا دیں, اپنی فیملی کو بھی بتا دیں کہ بھائی مجھے بلوانا مت. آپ کو تقریباً 1 ہفتہ لگے گا اپنے ملک تک پہنچتے, کم و بیش 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. وہ لاش تو پھر وہ اس کا وہ حساب کتاب, تو پھر کولڈ اسٹوریج, تو پھر مختلف پروسیجر ہوتے ہیں, 4 5 6 دن 7 دن لگ جاتے ہیں. اور جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہاں مشکل سے 2 سے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے آپ رہیں گے, وہ بھی وہ کہیں گے ان کو لے جاؤ. تو ان کو بھی سمجھا دیں کہ بھائی آپ میری میت منگوانے پر ضد مت کیجیے گا, اور اس ملک میں بھی کہتے ہیں بھائی میری تدفین یہیں کر دیجیے گا. کیونکہ حضور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ تقریباً یہ سمجھیے کہ 12 سے 15 لاکھ روپے پاکستانی خرچہ آتا ہے وہاں پر تدفین پر. یہ یورپ, UK, امریکہ, ابھی میں نے آسٹریلیا میں بھی یہ معلومات لی اور جاپان میں بھی میں نے یہ معلومات لی ہے. تقریباً ان ممالک میں اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں ایوریج کے حساب سے, تو وہیں پھر ان کی تدفین ہوتی ہے. ان کو آج ہی اپنے آپ کو بیان کرنا پڑے گا, اور وہاں لوگوں نے بیان کیا کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ ویسا ہی کر لینا. تو اگر یہ آج کہہ دیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ پھر آگے کی اتنی وہ ضد بحث نہ رہے, ورنہ پھر مسائل ہوتے ہیں. لانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں ایک واقعہ میری ماضی کا یادگار واقعہ ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی رہتا تھا, میں جب میرے لڑکپن کی بات کر رہا ہوں, محلے میں آدمی رہتا تھا, بڑا ہی میں نے کہ وہ خوش گو, مطلب مذاق مسخری اور انہیں کہ آدمی کو غم بھلا دے. اس کا ایک خوبرو باقی خوبصورت نوجوان جو بیٹا تھا, وہ بچپن سے میں اس کو جانتا تھا, شاید ہم کھیلتے بھی ہوں کے ساتھ. تو وہ امریکہ بیچارہ نوکری پہ گیا, تو کسی دکان پہ کام کرتا ہوگا, وہاں وہ ڈکیتی کا کیس ہوا ہوگا, ڈاکو نے گولی مار دی اس کو, وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اب یہ محلے میں خبر آئی, کوہرام مچ گیا, اور اس کا باپ جو تھا وہ بیچارہ صدمے سے پاگل ہو گیا غالباً, بالکل وہ نفسیات اس کو بس ہوش جاتا رہا اس کا. 8 دن کے بعد مجھے یاد ہے امریکہ سے اس کی بیچاری کی لاش آئی تھی. 8 دن. تو یہی کہ وہاں اگر دفن کر دیتے تو آسانی ہوتی نا, اور پھر یہ لاش آئی یہ مفت تو نہیں آئی ہے نا, لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہوگا اس پر, یہ الگ. اب اگر مطلب یہ کہ بالکل غور کرنا چاہیے, دوسرے ملکوں میں لاشیں بھیجنے کا نظام جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. جہاں اس کے اگر نیک بندہ ہے تو یہ دنیا میں کہیں بھی ہو, یہ مطلب قبر میں امن پائے گا. اور اگر کتنا ہی یعنی کہ اگر برا بندہ ہے تو آپ کہیں بھی دفن کر دیں, ظاہر ہے اس کو اگر وہ عذاب اس کو دینا ہے اللہ پاک نے تو وہاں اس کو عذاب ہی ملے گا. تو اس لیے مطلب اللہ کی رحمت کے بھروسے پر رحمت کے حوالے کر دیں, اور جلدی جلدی اس کو آپ کا بھی ٹینشن صدمہ خاندان. اب 8 دن کے بعد لاش آئے تو 8 دن تک گھر میں جو صفے ماتم بچھی رہتی ہوگی, جو صدمے ہوتے ہوں گے, جو سوگواروں کے تانتے بندھے ہوتے ہوں گے, تعزیت کرنے والوں کے, اور جو بھی حساب کتاب ہوتا ہوگا وہ اندازہ لگ سکتا ہے. بلکہ لوگ بھی ٹھنڈے بھی پڑ جاتے ہوں گے. 1-2 دن مطلب تھوڑا جوش ہوتا ہے تعزیت کا, پھر پتہ بھی نہیں ہوتا, انتظار ہو رہا ہے لاش کا. پھر لاش آئے گی تب تھوڑا رونا دھونا بچے گا, اور اٹھا کر دفن کیا پھر بھول گئے, اور لاکھوں روپے اس پہ خرچ. اور میت اذیت میں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے نقل کی ہے کہ میت کی ہڈی توڑنا یہ ایسا ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی توڑنا. میت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو بالکل یعنی کہ چیر پھاڑ کی جاتی ہے, توڑ پھوڑ کی جاتی ہے.
अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। जिस तरह बकरे को घसीटते ना टांग पकड़ के, बकरीद में आपने गलियों में देखा हो, बिल्कुल यानी कि जो पोस्टमार्टम जहां भी हो दुनिया में, मैं मतलब यानी कि पोस्टमार्टम जो होता है ना, ये आमतौर पे उसमें गैर मुस्लिम होते हैं इसको घसीटने वाले। हमारे यहाँ तो ये है, मेरी मालूमात, बिल्कुल टांग पकड़ के वो घसीट के ये खींच के लाते हैं और डालते हैं उस पर टेबल पर। और ये जो तलबा सीख रहे होते हैं, जिसपे मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह, तो काटते हैं, फाड़ते हैं, चीरते हैं, ये डाइसेक्शन इसको बोलते हैं। तो ये हो रहा होता है सब, या उसको मतलब यानी कि अपने पोस्टमार्टम करना होता है इसके, अगर कहीं भाई कहीं कत्ल तो नहीं हुआ, या कत्ल हुआ तो किस वजह से हुआ, तो जहर तो नहीं दिया, तो ओजड़ी फाड़े बगैर जहर मिलेगा नहीं ना। अगर कोई भी इनकी मतलब बहुत मतलब आदमी तसव्वुर करे कि जिंदा आदमी को कितनी तकलीफ हो, एक इंजेक्शन लगता है तो निकल जाती है आदमी की। यार मैंने ऐसी लाशें देखी है, मतलब कि खोपड़ी है ना, इसको बिल्कुल ये खोपड़ी को चीर के इसके दो फाड़ियां जिसको बोलते हैं ना, याद पड़ता है मुझे कि ये दो फाड़ियां कर देते हैं इसके, दो पीस। जरूरत नहीं करते होंगे। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए और अल्लाह करे कि हम मदीने शरीफ में शहादत का जाम पिए और बस वो अमन व आफियत के साथ बकी मिल जाए। आला हजरत ने जो दुआ मांगी है ना मदीने शरीफ में दफन होने की, उस वक्त तो जो भी निज़ाम हो, उस वक्त का निज़ाम तो खैरियत के साथ तदफीन हो, ऐसा कुछ में याद पड़ता है, लफ्ज़ खैर आफियत कुछ यूज किया है, तो आफियत के साथ जन्नतुल बकी मिल जाए, तो इससे बेहतर रूए जमीन पर कोई कब्रिस्तान नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अज़ा साहब से ये सवाल है कि अक्सर हम जल्दबाजी में नुकसान कर लेते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? समझा नहीं क्या बोला? हम जल्दबाजी में नुकसान कर बैठते हैं, तो ये जल्दबाजी से कैसे बचा जाए? कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 11 में इरशाद होता है, वकानल इंसानु अजूला। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान, और आदमी बड़ा जल्दबाज है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है जो कि हजरत सहल बिन साद साईदी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्मीनान अल्लाह पाक की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी दुनियावी और दीनी कामों को इत्मीनान से करना अल्लाह पाक के इल्हाम से है, और इनमें जल्दबाजी से काम लेना शैतानी वसवसा है। इस तर्जमे और शरह से मालूम हो गया कि यह हदीस उस आयत करीमा के खिलाफ नहीं। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, तर्जमा है कंजुल ईमान, और दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ। और नहीं, इस आयत के खिलाफ है युसारिऊन फिल खैरात, तर्जमा है कंजुल ईमान, नेक कामों पर दौड़ते हैं। कि वहां सुरत यानी जल्दी करना, यानी दीनी काम में देर ना लगाने, जल्द अदा कर लेने की तारीफ है। और यहाँ खुद काम में जल्दबाजी करना के काम बिगड़ जाए, इससे मुमानात है। अरे नेकी में तो जल्दी करनी चाहिए, और जो दुनियावी काम होते हैं, अपने जाती काम होते हैं, तो इनमें जल्दबाजी करना, इस ऐसी जल्दबाजी की जिससे काम बिगड़ जाए, इससे मुमानत है। बाद लोग 2 मिनट में 4 रकातें पढ़ लेते हैं, यह है उजलत,
यानी जल्दबाजी। नफीस इबादत में जल्दी बुरी है। मिरातुल मनाजी, हवाला मिरातुल मनाजी, जिल्द 6 पेज नंबर 625। तो नेकी में जल्दी होती है और जो दुनियावी काम होते हैं उसमें आदमी जल्दी ना करे, यानी ऐसी जल्दी ना करे कि जिससे नुकसान उठाना पड़ जाए। इसकी और भी तफसीलात है। तो मकतबतुल मदीना की किताब है जल्दबाजी के नुकसानात। ये ज्यादा सफ़ात नहीं है, इसके 100, 125, 150 होंगे सफ़ात। तो ये आप मकतबतुल मदीना से हासिल करके या दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको जरूर पढ़िएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा आप इसमें मजमून पाएंगे, आयतें हदीसें, इससे आपको पता चले जल्दबाजी के नुकसान कितने हैं और किस में जल्दबाजी करनी है, किस काम में नहीं करनी। इसका हदीया भी अगर कॉस्ट मुमकिन हो तो अनाउंस कर दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i अस्सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर हफ्ते हमें रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है, आइए उसके हवाले से कारकर्दगी सुनते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताले के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए जानशीन अमीरा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 14 सफ़हात के रिसाला अमीर अहले सुन्नत से खुशबू के बारे में सवाल जवाब पढ़ या सुन ले, उसके ज़ाहिर के साथ साथ बातिन को भी मुअत्तर फरमा और उसे बेहिसाब बख्श दे।
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے خوشبو کے بارے میں سوال جواب اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. پیارے آقا کی پسندیدہ خوشبوئیں. مغرب کے بعد عطر لگانا کیسا؟ عطر لگائیے مگر تکلیف نہ دیجیے. آپ کو عطار کیوں کہا جاتا ہے؟ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 24 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، ہندی، پشتو، رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ کسی کے عیب مت ڈھونڈو کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. 5واں ہفتہ مئی 2023، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. کسی کے عیب مت ڈھونڈو. پاکستان اسلامی بھائی 16,95,549 16,95,549. پاکستان اسلامی بہنیں 8,64,647 8,64,647. اوورسیز اسلامی بھائی 36,096 36,096. اوورسیز اسلامی بہنیں 1,27,910 1,27,910. مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,24,202 27,24,202. کسی کے عیب مت ڈھونڈو. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی 27 مئی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کس خلیفہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پانی نہ ملے تو اسے حاصل کرنے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں گا؟ جواب، خلیفہ ہارون رشید نے. سوال نمبر 2، پہنے ہوئے کپڑے سے منہ صاف کرنے سے کون سا مرض پیدا ہوتا ہے؟ جواب، بھولنے کا مرض. سوال نمبر 3، کھڑے کھڑے داڑھی میں کنگھا کرنے سے کس نقصان کا اندیشہ ہے؟ جواب، قرض چڑھنے کا اندیشہ ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت صابر، ہری پور، رضوان اتاری، ڈیرہ غازی خان، شبیر میمن، دادو سندھ، طارق محمود بن محمد اقبال اتاری، ککھڑ منڈی، بنت اقبال اتاریہ، پاک پتن شریف، محمد عدنان اتاری، منڈی بہاؤدین، محمد شاہد رضا اتاری، رائیونڈ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام شبیر میمن، دادو سندھ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. الحمدللہ ہر ہفتے ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں جس کا جواب اگلے مدنی مذاکرے سے پہلے اذان عشاء تک ناظرین SMS کے ذریعے، جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. اپنی کنیت ام فلاں یا بنت فلاں اس طریقے سے جواب دے سکتی ہیں. سوال نمبر 1، آج کے مدنی مذاکرے کا جو سوال ہے، سوال نمبر 1، سب سے افضل کون سا درود پاک ہے؟ سوال نمبر 2، کس درخت کے لیے 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے برکت کی دعا فرمائی؟ سوال نمبر 3، حدیث پاک میں کس صفت کو اسلام کی خاص خصلت فرمایا گیا؟ تو ان تینوں سوالات کے جو جوابات ہیں اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ SMS کے ذریعے ہمیں دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.